गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में नए नरोदा स्थान पर स्मार्ट मीटर के खिलाफ पिछले 10 दिनों से जीईबी गेट के सामने धरना दिया जा रहा है, जिसमें जीईबी के अधिकारी हमारे सवालों का सटीक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ नरोदा में पहले पुराने मीटर में जो बिल आ रहे थे उनकी जगह स्मार्ट मीटर में 3 गुना तक बिल आ रहा है, जिससे पुराने मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाकर उसे प्रीपेड में परिवर्तित करके हमें संदेश दिया जाता है, जिसका नरोदा में धरना देकर पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इस संबंध में नरोदा पुलिस स्टेशन में जीईबी अधिकारियों सोसाइटी के अध्यक्ष या सचिव को सूचित किए बिना, उपभोक्ताओं को इस संबंध में सूचित किए बिना हमारी सोसाइटी में स्मार्ट मीटर लगाए गए जागरूकता कार्यक्रम जिसको लेकर एक शिकायत की गई, जिसमें जीईबी के अधिकारियों ने उन्हें यह चेतावनी भी दी है कि किसी भी हालत में स्मार्ट मीटर नहीं हटाए जाएंगे और ये भी कहा जाता है कि आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। भीषण गर्मी के बावजूद इस स्मार्ट मीटर के विरोध में भाई बहन जीईबी पर धरने में शामिल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय पार्षदों और आपको बता दें विधायकों को पानी तक नहीं पच रहा है। हमारा आंदोलन राजनीतिक नहीं बल्कि एक आम आदमी के तौर पर है जो बिल में भारी बढ़ोतरी देखने जा रहा है और हमारी आय के हिसाब से किफ़ायती नहीं है। यह हमारी आय के हिसाब से किफ़ायती नहीं है। सभी व्यक्तिगत तौर पर इसके खिलाफ इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। जीईबी अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते, प्रशासन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर इस मामले का उचित समाधान नहीं हुआ तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। अन्य राजनीतिक दलों ने हमारे धरना स्थल पर आकर हमें बताया है कि हम इस मामले पर आपके साथ हैं और अपने तरीके से आगे भी प्रतिनिधित्व करेंगे, उन्हें आश्वासन दिया गया है। ये नवा आधुनिक टेक्नोलॉजी સાથેના છે ત્યારે અમને એ સમજાતું નથી કે આટલા લાખો કરોડ રૂપિયા તમારે આ સ્માર્ટ મીટરોની પાછળ ખર્ચવાના કારણો શું? આ જ મોટો ભ્રષ્ટાચાર, ગેરવહીવટ, કોને છાવરવા માટે, કોને ઓબ્લાઇઝ કરવા માટે સ્માર્ટ મીટર લાવ્યા છે એ પણ એક તપાસનો વિષય છે, કેમ કે અત્યારે આખી સરકાર કાંડ અને કૌભાંડોથી ચાલી રહી છે। જે રીતે લોકોને આમે વીજળીના દરો જે રીતે વધારી રહ્યા છે અને વીજળીના દરો વધારવાના કારણે લોકો ઉપર જે ભારણ પડી રહ્યું છે એ તો મુશ્કેલી છે। એક તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ચૂંટણી મેનિફેસ્ટોમાં વાત કરી છે વીજળી માટે કે અમે એના માટે ગંભીરતાથી વિચારીશું, ત્યારે એ મુદ્દો જુદો રહ્યો। ત્યારે અત્યારે જે રીતે ગુજરાતમાં જ્યાં સ્માર્ટ મીટર લગાવ્યા છે ત્યાં જન આક્રોશ આવ્યો છે। આજે 8-8 દિવસથી અહીંયા બહેનો, નાના બાળકો, અમારા ભાઈઓ, વડીલો પોતાના કામ, ધંધો, રોજગાર, પરિવારને છોડીને 46 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરની અંદર આપ જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયા એ લોકો 8-8 દિવસથી બેઠા છે। આના મુદ્દે અમે કોઈ રાજકારણ કરવા માંગતા નથી। અમે આજે 8 દિવસ પછી ત્યારે અહીંયાથી આગેવાનોએ અમને કીધું કે અમે 8-8 દિવસ સુધી બેઠા છે, સરકાર કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં ઊંઘી રહી છે, કોઈ અમને સાંભળવા માંગતું નથી, કોઈ અમારી વાત નથી સાંભળ્યું। અમારે પછી મેદાનમાં આવવું પડ્યું। સમગ્ર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી આ સ્માર્ટ મીટરની સામે જે રીતે લોકો ઉપર 6-6 લાખ રૂપિયાના બિલો ઠોકી રહ્યા છે, જે ઘરના મકાનો બંધ હોય, જ્યાં વપરાશ ના હોય ત્યાં હજારો રૂપિયાના બિલોના આંકડાઓ જે છે એમના વોટ્સએપ અને મોબાઈલ ઉપર એમના જે એપ છે એપની અંદર આવી રહ્યા હોય। આવું હું માનું છું કે લોકોનું જે રીતે શોષણ થઈ રહ્યું છે એની બાબતમાં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના સન્માનીય પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલજીએ પણ અમને વાત કરી છે। એ પણ અને સમગ્ર કોંગ્રેસ પક્ષ આજે મારી સાથે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખ અને અમદાવાદના પ્રભારી વિમલભાઈ શાહ અને અમારા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના સિનિયર પ્રવક્તા ડોક્ટર મનીષ જોશી, અમે તમામ કોંગ્રેસનું પ્રતિનિધિ મંડળ ને અમારા શહેર કોંગ્રેસના અહીંયા તમામ અમારા વોર્ડ પ્રમુખો, હોદ્દેદારો, તમામ આગેવાનો આજે અહીંયા આવ્યા છીએ, મળ્યા છીએ। અમે અહીંયા જે ઉત્તર ગુજરાત વિદ્યુત જે અધિકારીઓ છે એમની સાથે પણ આ મુદ્દે ટેકનિકલ બાબતે પણ ચર્ચા કરી છે કે તમે આ મુદ્દો પ્રતિષ્ઠાનો ના બનાવો। જે પ્રજાની અંદર જ્યાં છે ત્યાં સરકારે જાહેરાત પણ કરી છે, સરકારે વાતે પણ કરી છે, પણ સરકારની બેવડી નીતિ છે, જ્યાં દબાવવાના હોય ત્યાં લોકોને દબાવવાની કોશિશ કરે છે અને જ્યાં લોકોનો આક્રોશ જન આંદોલન ફાટી નીકળે ત્યાં સરકાર કહે કે અમે પાછું ખેંચી અત્યારે મોકૂફ રાખીએ છીએ। સરકારની આમાં નીતિ સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ। મીટર છે એ બંધ કરવા જોઈએ અને ડિજિટલ મીટર જે લોકોની માંગણી છે એ ડિજિટલ મીટર ચાલુ રાખવા જોઈએ, એ બી કોંગ્રેસ પક્ષની સ્પષ્ટ માંગણી છે। આ મુદ્દે કોંગ્રેસ પક્ષ જે છે એ લોકોની સાથે છે। मेरा नाम जोली है, मैं गायत्री ग्रीन का चेयरमैन हूँ। हमारा मांग यही है, हमारा पुराना मीटर वापस दे दो, आपका नया जो मीटर लगाया वो लेके जाइए। हमारा सोसाइटी में भी अभी रात को कोई सोता ही नहीं है, सब लोग बाहर बैठे गार्डन में बैठे रहता है, पंखा चालू करने में डर लगता है, मीटर का बिल भरो, अब मकान की हफ्ता भरो। ये दो वस्तु के लिए सब टेंशन में, सोसाइटी में रो कर रही है। हम लोग किसको समझाओ? सुबह से शाम तक हम यहाँ आकर बैठते, इधर का अधिकारी बोलती है एमडी को बुला के बता दो, किसको बुलाओ, ऐसा घुमा कर रहे हैं। इतना पब्लिक यहाँ खड़ी हुई है,
सभी भूखा पेट पर बैठे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चा भी इसके अंदर यहाँ ही सुलाते हम लोग। हम क्या कर सकते हैं इसके पीछे। और इन लोग बोलता है अभी पुराना मीटर पैर में रखो, नया मीटर अब यूज करना। हम उसके लिए तैयार नहीं। हमारा पुराना मीटर हमको चाहिए। हमको पुराना कुछ भी नहीं। हमको स्मार्ट, हमारा स्मार्ट फोन भी होगा तो करो, फोन भी खरीदी करो उसके लिए जी भी पैसा देंगे हमको स्मार्टफोन करने के लिए, तो मैं एग्री हूँ। स्मार्टफोन के लिए आईफोन लेना, पैसा जी भी दो, एमडी दो, नहीं सरकार दो, तो हम ये करने के लिए तैयार हूँ। स्मार्टफोन एग्री करेंगे, तो नहीं करेंगे। मेरा नाम अरविंद भाई गोयल है। मैं यहाँ नरोड़ा में प्रथम प्रायोरिटी रेसिडेंसी आई हूँ, उसी में रहता हूँ। अच्छा, जो ये डेलीगेशन लेके इतना सारा यहाँ पे जो हंगामा मचा है इलेक्ट्रिक पावर सिटी के अंदर, तो इसके आपके मुद्दे क्या क्या हैं जो आने वाले वक्तों में डिजिटल मीटर लगाने जा रही है गवर्नमेंट, तो आप बताइए आपकी समस्या। हमारा तो एक ही मुद्दा है कि स्मार्ट मीटर जो ये जेबी वाले ने जो लगाए हैं वो हमें हटाने हैं और हमारे जो पुराने मीटर है वो ही वापस लाने हैं। ये मुद्दे के लिए हम आज 9वां दिन है। 9 दिन से हम लगातार यहाँ जीबी के सामने लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कुछ सॉल्यूशन आया नहीं है। जीबी के जो भी अधिकारी होते हैं वो भी कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऊपर पावर होता है सब हायर अथॉरिटी के पास, वो भी यहाँ पे आते नहीं है। 9 दिन से देख सकते हैं आप, ये लेडीज सब लोग धरने पे हैं, लेकिन इसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। सब सुबह से, आज तो सुबह से यहाँ पे किसी ने कुछ खाना भी नहीं खाया है। ऐसी गर्मी में भी ये औरतें यहाँ पर टिकी हुई है। उनकी एक ही मांग है, हमारा पुराना मीटर चाहिए। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।